ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੈਕਸਵਿਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਐਚ ਆਚਾਰਿਆ ਲੋਕੇਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਮਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। जो भी आपका जो मिशन है जो अहिंसा भारती का, जो हम यहाँ पर भी जितने भी अभी जैसे ढिल्लों साहब ने बताया कि यहाँ पर जितने भी आज इनवाइटेड गेस्ट हैं धालीवाल जी के, वो सभी कम्युनिटी में बहुत इन्वॉल्व हैं और उनका भी हमेशा एक ही वो रहता है कि पीस एंड हार्मनी इन द वर्ल्ड। और उसके लिए तो आपके जो इनिशिएटिव्स हैं, आपके जो काम है वो बहुत अच्छे हैं। एक रेस्टोरेंट में 5-6 लोग सेलिब्रेट करने जाते हैं, 4-5 पार्टनर होते हैं और बड़ी अच्छी महंगी ड्रिंक ऑर्डर करते हैं, अच्छा खाना ऑर्डर करते हैं एंड रेस्टोरेंट का मालिक बहुत खुश होता है। बोलता है क्या बात है कि आज आप लोग इतने खुश हो, इतनी महंगी ड्रिंक कर रहे हो। तो बोला आज हमारा बिजनेस बहुत अच्छा हुआ, आज हम लोग ने बहुत अच्छा बिजनेस किया तो हम लोग ये बिजनेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जो मालिक था वो बोला रेस्टोरेंट का, बोला कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, रब से प्रार्थना करता हूँ कि आपका बिजनेस 4 गुना 10 गुना बढ़े और आप ऐसे हमेशा और आप फैमिली के साथ में हो। तो वो भी खुश हो गए। फिर उन्हें पूछा कि आपका बिजनेस क्या है। बोले हमारा फ्यूनरल होम है, आज बहुत सारी लाशें आई, तो हमारा बहुत बिजनेस हो गया। Mission of a peace, staying for universe, for all together. I always stand and speak for unity, especially being coming from Sikh home, born in Gurdwara, grown up. Sikhism is the way of life. I tell people always, Sikhism is a universal religion that belongs to everyone. We welcome everyone. I can imagine how many people here sitting with it, wearing turbans, being true Sikhs, honoring you today. That's a statement from my community, statement from our people that to welcome you here. $1,000 contribution towards your business. And I hope that little bit will help somewhere. And we wanted to welcome all of you again. Elections on the ways. Besides Moniji, please give me 30 more seconds because I don't get to connect with many people in the group. So with that, I would say thank you again. And took so many flights just to be here with us. I know you have a busy schedule, so please thank you so much for being here and thank you everyone for coming for such a short notice. ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਆਏ ਥੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਵਰਲਡ ਪੀਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। की वजह से मैं यहाँ पहुँच पाया। तो हम लोग शिकागो आए थे, जैना 2025 जो कॉन्फ्रेंस थी शिकागो में। लगभग 5,000 लोग उसमें पूरे यूएस से आए थे, पूरी जैन कम्युनिटी, कि भाई कैसे आगे अपने सेवा कार्यों को बढ़ाना है। तो मेरा उसमें टॉपिक था हेल्थ, क्योंकि मेरा एक्चुअल में शुरू से टॉपिक हेल्थ ही है। तो भारत में अभी हमारे 125 हॉस्पिटल और क्लिनिक्स हैं, जिसमें 52 हॉस्पिटल हैं, 15 डे केयर सेंटर हैं और 60 क्लिनिक्स हैं आयुर्वेद के। हरि सिंह भोला जी, धालीवाल साहब, बॉबी कलोटे and Mukesh ji and Mohan Vachu ji and Acharya Monish ji and all the leaders in this room. And of course it is my pleasure and honor to welcome our next speaker, Bernie Adams, who is brother of our beloved mayor from New York City. Everybody knows him and he will be speaking after me. So we are very grateful that you came here and your presence. Thank you so much. So Acharya ji is very unique person. As you remember,
Mahatma Gandhi said that eye for an eye will make the world blind. And Martin Luther King said, we need to learn to live with each other as brothers, or we all will perish as fools. And unfortunately, Mahatma Gandhi is not there, as well as Martin Luther King is not there. We were thankful that Acharya Lokesh Muniji is taking that message of unity and peace all over the world. He has traveled 20,000 miles as locally, but he has traveled hundreds of thousands of miles all over the world to spread the message of peace and unity. Thank you so much, Aljani. Now, with the big hands, I would like to request Bernie Adams. Namaste. To be that close to you. When I walked in here, I could just feel a sense of peace, and now I know why. Just to get a chance to know you, and I'm looking forward to taking my book. So I don't know where it went. I don't know if that's it. But I'm looking forward to taking that book home and learning more about you. I actually learned a lot about the Sikh religion in particular, because I used to be a police officer. I used to work for him, 2 years ago. I used to run his security for him. The city said they couldn't pay me because I'm his brother. Number two, the economy. He's put people back to work. We know COVID, remember COVID? Decimated our economy. And he has been successful in creating more jobs in the city's history, more than any mayor before him. And so when you think about it, when you read about him in the paper, you're going to hear all the negative things, all the negative stuff. And so right now what he's looking to do is two things. Number one, he's looking to, I call it, he started some stuff and he needs another 4 years to continue what he started. And I believe he's going to be more successful than any other mayor. He calls himself the broccoli mayor. You know, we eat broccoli, it's healthy for us. We don't think about it until later. You know, the Dr. Bajanis of the world tell us, listen, it was great that you ate well. He's like the broccoli. He says you're going to feel the effect. Thank you, Mayor. I appreciate it. वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भाई करमजीत जी के आमंत्रण पर आप सभी यहाँ पर उपस्थित, और मैं अगर हरि सिंह जी से शुरू करूं, बॉबी जी से लेकर के ऐसे घूमते ही यहाँ तक पहुँचूं, हर एक व्यक्ति नहीं, एक संस्थान यहाँ पर उपस्थित है। और उन सब का भी उद्देश्य यही है कि कैसे हमारी दुनिया और बेहतर बने, कैसे दुनिया में अहिंसा, शांति और सद्भावना का साम्राज्य स्थापित हो, और कैसे हम अपनी भावी पीढ़ी को खूबसूरत दुनिया दे करके जाएं। बंधुओं और बहनों, उसमें भी जब सिख समाज की बात आती है, हालांकि इस उपस्थिति में सिख समाज के सिवाय, लेकिन वो सभी उनके मित्र हैं, उस नाते मैं अगर उसी में समावेश करूं तो ये वो समाज हैं जिन्होंने
भारत की बात करूं तो वहां की देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए सदैव बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी और 7 समंदर पार आकर के भी वैश्विक धरातल पर भी उन्होंने जिस तरह से भूमिका को अदा किया है, रहते यहां हैं किंतु दिलों में उनके भारत धड़कता है। और जब मैं जैनिज्म को और सिखिज्म को देखता हूं तो यूं लगता है कि हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। भाई हरि सिंह जी के माध्यम से सभी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जब साहिबजादों के दाह संस्कार का अवसर था, उस समय में जैन समाज की एक शख्सियत जिन्हें आप जानते होंगे टोडरमल जैन जी के नाम से, मैंने सुना है न्यूयॉर्क बहुत महंगा शहर है ये, लेकिन आज भी सबसे महंगी अगर रजिस्ट्री कोई है तो वो उस समय जो खड़ी मोहरें बिछा करके हासिल की गई थी, उससे महंगी रजिस्ट्री अभी तक करमजीत जी नहीं हो पाई। और मैं सिख महानुभावों की अगर बात करूं, मैं भाई राज बयानी मुकेश से भी कहना चाहूंगा कि साल में 12 बार चक्कर लगाते हो इंडिया का और इंडिया गेट पे फोटो भी खिंचवाते हो, पर आपको पता होना चाहिए कि इस इंडिया गेट पर जिन वीर बहादुरों के नाम उकेरे गए हैं उसमें 75% नाम केवल सिख कौम से आए। तो ऐसे के अंदर जब भी यहाँ आना होता है, भाई करमजीत जी का मेरा रिश्ता आज ही हम गिन रहे थे 18 वर्ष पूरे हो गए। 2007 में हमारा मिलन, जैसे अभी आचार्य मनी जी ने कहा कि हम जैना कन्वेंशन में आए हैं शिकागो में, 2007 में मैं न्यू जर्सी जैना कन्वेंशन में उपस्थित हुआ था और तब रिश्ता जुड़ा तो ऐसा जुड़ा, हालांकि उन्होंने ये मुझे बहुत रोकते हैं, मुझे कहा कि नहीं ऐसा कुछ बताना नहीं है, पर आप अभी ये वर्ल्ड पीस सेंटर की जो इमारत देख रहे थे, इसके मजबूत जो खंभे देख रहे थे, उन मजबूत खंभों में एक बड़ा खंभा जो ये है। सवाल ये नहीं है कि इन्होंने $1 लाख का योगदान दिया, पैसे की बात नहीं है, पैसा तो और भी देने वाले मिल जाते हैं, लेकिन जो दिल की बात है, जिस तरह से जुड़े, पहले दिन जुड़े थे क्रम से, वो उसी तरह से अनेक ऐसे उदाहरण हैं, मैं यहाँ सुना सकता हूँ। पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि करमजीत जी ने आज सबको यहाँ पर याद किया और मैं देख रहा हूँ हर व्यक्ति, फिर से कह रहा हूँ एक संस्थान की तरह, हर व्यक्ति के साथ सैकड़ों हजारों लोग जुड़े हुए हैं और हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में सेवा का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो आइए बंधुओं, आपको भी आह्वान कर रहा हूं और यही कहूंगा कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। ये खुद से खुद की मुलाकात, ये खुद से खुदा की मुलाकात, और खुद से खुद की मुलाकात के लिए, जैसा अभी आचार्य मनीष जी ने आयुर्वेद की भी बात कही आपके सामने, और मैं एक धर्माचार्य होने के नाते भी कहना चाहूंगा, धर्म के क्षेत्र में भी कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म की साधना और आराधना के लिए भी शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है, और स्वस्थ शरीर से ही समृद्ध समाज बनता है, समृद्ध राष्ट्र बनता है, समृद्ध विश्व बनता है।